مسٹر ہٹلر اور مس آفت۔ ذرا اس آئینے کا رخ تھوڑا سا دائیں طرف کرو شیزا، تاکہ سورج کی کرن سیدھی اس کھڑوس کے لیپ ٹاپ پر پڑے اور اسے پتہ چلے کہ دنیا میں صرف ایکسل کی شیٹس ہی نہیں ہوتی بلکہ ہم جیسے زندہ لوگ بھی بستے ہیں۔ حیا نے اپنی کزن کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور منڈیر کے پیچھے مزید چھپ گئی، جہاں سے وہ نیچے لان کا صاف نظارہ کر سکتی تھی، جہاں دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی شاہویز سوٹ بوٹ پہنے بڑی سنجیدگی سے اپنی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بڑی شکنیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی انتہائی اہم مسئلے کو حل کرنے میں مصروف ہے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نواب منزل کی چھت پر بیٹھا اس کے سکون کو برباد کرنے کے درپے ہے۔ شیزا نے ہنستے ہوئے چھوٹا سا آئینہ سورج پر کیا اور زاویہ بدلتے ہی روشنی کا ایک تیز گول دائرہ سیدھا شاہویز کی آنکھوں میں جا لگا۔ شاہویز نے بکھلا کر ہاتھ آنکھوں کے آگے کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ دوبارہ سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اگلے ہی پل روشنی کا وہ دائرہ ناچتا ہوا اس کی سکرین پر آ گیا، جس سے اسے کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو گیا۔ حیا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی اور اپنی دوسری کزن ردا اور خالہ زاد بھائی مانی کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ نیچے شاہویز نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کیا اور غصے سے اوپر چھت کی طرف دیکھا، جہاں اسے یقین تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ حیا اور اس کی پوری پلٹن فوراً دیوار کے ساتھ چپک گئے تاکہ وہ انہیں دیکھ نہ لے۔ شاہویز نے گرجدار آواز میں کہا کہ حیا، میں جانتا ہوں تم وہاں موجود ہو، اور اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں تایا ابو سے کہہ کر چھت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دوں گا اور پھر تم ساری زندگی کمرے میں بند رہنا۔ حیا نے آہستہ سے سر اٹھا کر نیچے جھانکا اور مسکراہٹ دبائے بغیر اونچی آواز میں کہا کہ ارے شاہویز بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ ہم یہاں ہیں؟ ہم تو بس موسم کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ویسے بھی آپ کے پاس اتنا فالتو وقت کہاں کہ ہم جیسی بیکار مخلوق پر توجہ دیں۔ آپ تو بس اب فائلوں سے شادی کر لیں۔ شاہویز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے وہاں سے اٹھ کر اندر جانے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیا سے بحث کرنے کا مطلب دیوار سے سر ٹکرانا ہے، اور جاتے جاتے وہ بڑبڑایا کہ ایک دن اس لڑکی کا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پورے گھر کو پاگل خانے میں تبدیل کر دے گی۔ حیا نے فتح مندی سے شیزا اور اپنی کے ماتھے پر تالی ماری اور کہا کہ لو جناب، مسٹر ہٹلر کا موڈ خراب کرنے کا آج کا مشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ یہ حویلی دیکھنے میں تو ایک عمارت تھی، مگر حقیقت میں یہ دو الگ الگ سیاروں کا مجموعہ تھی، جن کے اصول اور قوانین زمین آسمان کا فرق رکھتے تھے۔ گھر کے عین وسط میں کھڑی وہ اونچی دیوار جسے گھر کے بچے اور بڑے دیوار برلن کہتے تھے، اس بات کی گواہ تھی کہ خون کے رشتے بھی کبھی کبھی ضد اور حنا کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف کا حصہ شاہویز کے والد جہانگیر صاحب کا تھا، جہاں کا ماحول کسی ملٹری کیمپ سے کم نہ تھا۔ وہاں صبح 6 بجے اٹھنا لازم تھا اور ناشتے کی میز پر اخبار پڑھتے ہوئے بات کرنا منع تھا، جبکہ ہر چیز اپنی جگہ پر کرینے سے رکھی ہوئی تھی، اور ذرا سی بے ترتیبی پر جہانگیر صاحب کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس بائیں طرف حیا کے والد عالمگیر صاحب کا حصہ تھا، جہاں زندگی اپنی پوری آب و تاب اور ہنگاموں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ وہاں رات گئے تک فلمیں دیکھی جاتی اور صبح دیر تک سویا جاتا تھا، اور کھانوں کی فرمائشیں ایسی ہوتی تھی جیسے وہاں کوئی ہوٹل چل رہا ہو۔ ان دونوں گھروں کے مکین ایک دوسرے سے بات بھی کرتے تو ایسے جیسے کسی سرکاری کام کے لیے مجبوراً کر رہے ہوں۔ وہ ہیل چیئر پر بیٹھے گھر کے سب سے بزرگ دادا نواب دین اکثر برآمدے میں بیٹھ کر حسرت بھری نظروں سے اس بار کو تکتے رہتے جو ان کے دو بیٹوں کے درمیان حائل تھی، اور گہری ٹھنڈی آ بھرتے ان کے پاس بیٹھے پرانے ملازم چچا شکور نے حقہ تازہ کرتے ہوئے کہا کہ نواب صاحب، آپ دل چھوٹا نہ کریں، مجھے لگتا ہے وقت دور نہیں جب یہ دیوار گرے گی اور دونوں بھائی پھر سے ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ دادا نے نام آنکھوں سے دیوار کو دیکھا اور گلوگیر لہجے میں کہا کہ شکور، مجھے اپنی موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس بات سے لگتا ہے کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ دیوار ہمیشہ کے لیے ان دونوں کو اجنبی بنا دے گی۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ میں مرنے پہلے اس دیوار کو گرتا دیکھ لوں، ورنہ میری روح بھٹکتی رہے گی اور مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا تو فضا میں معمول کی خاموشی کی بجائے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور حیا کی چھت پر بسنت کا سماں تھا۔ حیا نے اپنی پوری ٹیم کو اکٹھا کر رکھا تھا، جن میں اس کی خالہ زاد شیزا، جو منہ میں چیونگم چبانے اور الٹے مشورے دینے کی ماہر تھی، اور ماموں کا بیٹا مانی، جو پتنگ اڑانے سے زیادہ شور جانے کا شوقین تھا، اور سب سے چھوٹی کزن ردا، جو ڈھولکی بجانے پر مامور تھی، شامل تھے۔ چھت پر بڑے بڑے اسپیکر رکھے ہوئے تھے جن پر پورے والیوم میں گانے چل رہے تھے، اور مانی پوری جان لگا کر پتنگ کو ہوا میں بلند کر رہا تھا، جبکہ ڈور حیا کے ہاتھ میں تھی، جو اپنی انگلیوں پر ٹیپ لپیٹے ماہر کھلاڑیوں کی طرح پیچا لگانے کے لیے تیار تھی۔ نیچے لان میں شاہویز اپنے اتوار کے سکون کو برباد ہوتا محسوس کر کے شدید کوفت میں مبتلا تھا۔ وہ بھی ناشتے کی میز پر بیٹھا چائے کا کپ ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا کہ اچانک اوپر سے
बुक्का टक्का एक ज़ोरदार नारा बुलंद हुआ और साथ ही मानी और शिजा की चीखें गूंजी कि कट गई, कट गई। शावेज ने चूंकर कप मेज़ पर रखा ही था कि एक बड़ी सी कटी हुई पीली पतंग लहराती हुई सीधे उसके सर पर आ गिरी और उसकी लंबी तेज धार डोर शावेज के गले और हाथ में पकड़े कप में बुरी तरह उलझ गई। कप उसके हाथ से छूटकर मेज़ पर गिरा और गर्म चाय उसके कीमती ट्राउज़र पर फैल गई, जबकि पतंग की डोर ने उसकी गर्दन पर एक खराश डाल दी थी। शावेज गुस्से से पागल हो गया और उसने पतंग को नोच कर परे फेंका। ऊपर देखा जहाँ हया और उसके कजन्स अब भी शोर मचाने में मसरूफ थे और उन्हें खबर भी नहीं थी कि उनकी कटी पतंग ने नीचे क्या तबाही मचाई है। शावेज ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि हया और मानी नीचे आओ फौरन, वरना मैं ऊपर आकर तुम सब का वो हशर करूंगा कि उड़ाना भूल जाओगे। हया ने सहम कर नीचे देखा तो शावेज का हुलिया बिगड़ा हुआ था और वो वाकई गुस्से में बपरे हुए शेर की तरह लग रहा था। शिजा ने फौरन हया के कान में कहा कि बेटा आज तो हम गए काम से, ये खड़ूस तो कच्चा चबा जाएगा। मगर हया ने हिम्मत जमा की और ऊपर से ही मासूमियत का ड्रामा करते हुए कहा कि शावेज भाई हमने तो बस पतंग काटी थी, हमें क्या पता था कि वो आप पर गिरकर खुदकुशी कर लेगी। आप प्लीज़ हमारी पतंग वापस कर दें। वो मानी की फेवरेट थी। शावेज ने दांत पीसते हुए कहा कि पतंग की बच्ची, मैं तुम्हारी ये पतंगबाजी हमेशा के लिए ख़त्म करवा दूंगा और अभी मैं तायाबू के पास जा रहा हूँ। हया ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उसने मानी को आगे कर दिया कि जब ये सब इसका आइडिया था। हालांकि मानी बेचारा तो बस डोर पकड़ने आया था, लेकिन शावेज का गुस्सा देकर सब कज़न से दबे पांव वहां से खिसकने लगे। अभी ये हंगामा जारी था कि और शावेज गुस्से में अंदर की तरफ बढ़ रहा था ताकि इस तूफान बदतमीजी की शिकायत कर सके कि अचानक दादा नवाबदीन के कमरे से एक दिल खराश चीख सुनाई दी और साथ ही किसी चीज़ के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई। सारा गुस्सा और लड़ाई एक पल में हवा हो गए और दोनों घरों के लोग दीवाना वार दादाजी की कमरे की तरफ भागे। दादाजी कालीन पर गिरे हुए थे और उनका चेहरा पसीने से शराबूर था, जबकि वो अपना सीना जकड़े हुए थे जैसे उन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही हो। जहांगीर और आलमगीर ने सहारा देकर उन्हें उठाया और हया और शावेज भी अपनी तकरार भूलकर उनके सराहने पहुंच गए। एम्बुलेंस मंगवाई गई और पूरा खानदान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में परेशानी के आलम में था, जहां डॉक्टर अमजद जो दादाजी के मुआलिज भी थे और दोस्त भी संजीदा चेहरे के साथ बाहर आए। उन्होंने बताया कि नवाब साहब को दिल का शदीद दौरा पड़ा है और इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि उन्हें कोई गहरा जहनी सदमा पहुंचा है। शावेज ने बेचैनी से पूछा कि डॉक्टर अंकल कोई उम्मीद तो है ना, हम इन्हें बैरून मुल्क ले जाते हैं। डॉक्टर अमजद ने नफ़ी में सारी लाया और कहा कि बात इलाज की नहीं बल्कि मरीज़ की कुव्वत इरादी की है। नवाब साहब ने इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया है और उनकी एक ही जिद है कि वो मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी होते देखना चाहते हैं। आलमगीर साहब ने रोते हुए कहा कि हम हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, बस अब्बा जी को बचा लें। तब डॉक्टर अमजद ने वो बम फोड़ा जिसने वहाँ मौजूद सब लोगों को खसूसन शावेज और हया के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि नवाब साहब का कहना है कि उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद दोनों घरों को एक करना है और ये तभी मुमकिन है जब शावेज और हया का निकाह हो जाए, और अगर ये ना हुआ तो वो ना दवा लेंगे और ना ही इलाज करवाएंगे। ये सुनते ही हया का रंग सफ़ेद पड़ गया और वह लड़खड़ाकर दीवार के साथ लग गई, जबकि शावेज को लगा जैसे किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो। उसने गुस्से और हैरत से डॉक्टर को देखा, जैसे कह रहा हो कि यह नामुमकिन है, मैं इस जंगली और गैर संजीदा लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मगर आईसीयू के शीशे के पार दादाजी की गिरती हुई सांस, मशीन की बीप की आवाज़ें उन्हें यह बावर करवा रही थी कि उनके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची। शावेज ने गुस्से और बेचैनी के आलम में अपने वालिद जहांगीर साहब का बाजू पकड़कर उन्हें साइड पर किया और इंतहाई तलख लहजे में कहा कि बाबा आप होश में तो हैं, डॉक्टर क्या कह रहा है और आप खामोशी से सुन रहे हैं। मैं इस गैर जिम्मेदार और बदतमीज़ लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, जिसका काम सिर्फ मेरा जीना हराम करना है। आप जानते हैं कि हमारा कोई जोड़ नहीं है। उधर दूसरी तरफ हया भी हिचकियाँ ले लेकर अपनी माँ और ताई के गले लगकर दहाई दे रही थी कि मुझे कोई जीता जागता इंसान चाहिए, ये रोबोट या चलता फिरता कैलकुलेटर नहीं जिसके सीने में दिल की जगह पत्थर और दिमाग में सिर्फ बिजनेस की फाइलें भरी हुई हों। वैसे शख्स के साथ घुट घुट कर मर जाऊंगी जो मुस्कुराना भी गुनाह समझता है। दोनों खानदानों के बुजुर्ग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दोनों अपनी अपनी जगह डटे हुए थे कि तभी आईसीयू से एक नर्स घबराई हुई बाहर आई और उसने कहा कि मरीज़ की हालत बिगड़ रही है, उनकी नब्ज़ डूब रही है और वो बार बार बच्चों का नाम ले रहे हैं। ये सुनते ही जहांगीर साहब ने शावेज के कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए कहा कि बेटा, मेरी ज़िंदगी में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज अपने बाप की इज्जत और अपने दादा की ज़िंदगी मांग रहा हूँ। अगर आज मेरे बाप को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। शावेज ने अपने बाप की आंखों में बेबसी देखी तो वो अंदर से टूट गया। उसने मुट्ठी भींचकर दीवार पर मारी और गहरी सांस लेते हुए कहा कि ठीक है बाबा, अगर दादाजी की ज़िंदगी का यही तकाजा है तो मैं तैयार हूँ।
दूसरी तरफ हया ने भी अपने बाप के झुके हुए कंधे देखे तो उसने आंसू पूंछते हुए हथियार डाल दिए और यूं अस्पताल के इस उदास कॉरिडोर में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो गया। दादाजी की हालत खतरे से बाहर होने के बाद घर में मंगनी की तैयारियां शुरू हो गईं, मगर शावेज के दिमाग में अभी तक गुस्सा उबल रहा था। मंगनी की रस्म से कुछ देर पहले उसने हया को घर की लाइब्रेरी रूम में अकेले बुलाया, जहां वो खामोशी से खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। हया डरते डरते अंदर दाखिल हुई तो शावेज पलटा और उसने मेज़ पर रखा एक कागज़ हया की तरफ सिरका दिया और इंतहाई सपाट लहजे में कहा कि इससे पहले कि हम इस ड्रामे को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। ये एक मुआहदा है जिस पर लिखा है कि हमारी शादी सिर्फ दादाजी की खुशी और उनकी सेहत की खातिर हो रही है। हम दोनों एक दूसरे की निजी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देंगे। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ना तुम मुझसे कोई उम्मीद रखोगी और ना मैं तुमसे कोई मुतालबा करूँगा। हया ने हैरत से इस कागज़ को देखा और फिर शावेज़ को, जिसके चेहरे पर इस वक्त भी कारोबारी संजीदगी थी। हालांकि हया नहीं जानती थी कि शावेज़ के दिल के किसी गोशे में बचपन से हया के लिए एक नरम गोशा मौजूद था, मगर हया की लापरवाही और उम्र के फ़र्क ने उसे हमेशा इजहार करने से रोके रखा और आज वो अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कर रहा था। हया ने कागज़ उठाया और एक नज़र पड़ने के बाद पेन उठाकर उसके निचले हिस्से में कुछ लिखने लगी। शावेज़ ने भवें स्केड़ कर पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? हया ने इत्मीनान से लिखना ख़त्म किया और कागज़ वापस शावेज़ के आगे करते हुए कहा कि मैंने भी अपनी कुछ शर्तें शामिल कर दी हैं। अगर ये सौदा है तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। शावेज़ ने कागज़ पर नज़र डाली तो उसका सर चकरा गया, क्योंकि हया ने लिखा था कि उसे रोज़ाना शाम को आइसक्रीम चाहिए होगी, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और सबसे अहम यह कि रात को ड्रामा देखने के दौरान टीवी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ हया के पास रहेगा और शावेज़ को खबरें देखने की इजाज़त नहीं होगी। शावेज़ ने बेयकीनी से हया को देखा कि ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। कहाँ ज़िंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला हो रहा है, कहाँ इसे आइसक्रीम और रिमोट की फ़िक्र है। उसने झंझलाकर कहा कि तुम वाकई पागल हो हया, मगर इस वक्त मेरे पास बहस का वक्त नहीं है। उसने जल्दी से दस्तखत किए और कागज़ दराज में डाल दिया। या किसी बहुत बड़ी मुसीबत से जान छुड़ाई हो। शादी की तकरीबात का आगाज़ हुआ तो हवेली की वो दीवार जो दोनों घरों के दरमियान थी, सजावट और रोशनियों की वजह से कम होने के बजाय मज़ीद नुमायाँ हो गई थी। ढोलकी की रात हया के घर की छत पर हंगामा बरपा था, जहाँ उसकी कज़न्स और सहेलियाँ ऊंची आवाज़ में गाने गा रही थी और स्पीकर का वॉल्यूम आखिरी हद तक खुला हुआ था। इत्तफाक से उसी रात शावेज़ की गैर मुल्की क्लाइंट्स के साथ एक बहुत अहम ऑनलाइन वीडियो मीटिंग थी जो उसके कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी थी। वो अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठा था, मगर बाहर से आने वाला शोर उसके कानों के पर्दे फाड़ रहा था और उसे क्लाइंट की बात सुनने में शदीद दुश्वारी हो रही थी। उसने गुस्से से हेडफोन उतारे और खिड़की खोलकर बाहर झांका, जहाँ हया पीले रंग के कपड़ों में मलबूस ढोलकी पर थाप लगा रही थी। शावेज़ ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि बंद करो ये मछली मंडी। क्या तुम लोगों को अक्ल नहीं है कि रात का वक्त है और लोग काम कर रहे हैं? मुझे सुकून से मीटिंग करने दो, वरना मैं आकर ये स्पीकर तोड़ दूंगा। हया ने शावेज़ की आवाज़ सुनी तो उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने गाना बंद करने की बजाय अपनी कज़न शीज़ा को इशारा किया और कहा कि ज़रा आवाज़ और ऊंची कर दो। लगता है शावेज़ भाई को हमारा गाना पसंद नहीं आ रहा, उन्हें ज़रा ऊंची आवाज़ में सुनाते हैं। अगले ही लम्हे स्पीकर से निकले आवाज़ मज़ीद बुलंद हो गई और हया ने जानबूझकर माइक में ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया ताकि शावेज़ मज़ीद चिढ़े। शावेज़ ने गुस्से से खिड़की बंद की और सर थाम कर बैठ गया, क्योंकि वह जान गया था कि इस लड़की से उलझना खुद को अजियत देने के मुतरादिफ है। निकाह का वक्त आया तो मस्जिद के हाल में दोनों ख़ानदानों के मर्द जमा थे और निकाह का रजिस्टर खोले बैठे थे। शावेज़ सुनहरी कढ़ाई वाली सफ़ेद शेरवानी में मलबूस बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आ रहा था, मगर अंदर से वह शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार था। हया को ज़नाना हिस्से से दस्तखत के लिए कागजात भिजवाए गए और दस्तखत के बाद जब रजिस्टर शावेज़ के सामने रखा गया तो सबकी नज़रें उस पर जमी हुई थी। शावेज़ ने जेब से अपना महंगा फाउंटेन पेन निकाला ताकि दस्तखत कर सके, मगर ऐन वक्त पर पेन की स्याही खुश्क हो गई और वह चलने से इनकारी हो गया। शावेज़ ने उसे कागज़ पर रगड़ा, मगर वो ना चला। मौलवी साहब ने कहा कि बेटा जल्दी करो, वक्त निकल रहा है। शावेज़ के बराबर में बैठी हया, जो अभी अभी निकाहनामे पर दस्तखत करके वहाँ आकर बैठी ताकि दुआ हो सके, उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि लाए मैं ठीक करती हूँ। इससे पहले कि शावेज़ उससे रोकता, हया ने उसके हाथ से पेन झपटा और उसे हवा में ज़ोर से झटका ताकि स्याही निब की तरफ आ जाए। हया का झटका इतना ज़ोरदार था कि नीली स्याही के मोटे मोटे कतरे पेन से निकलकर सीधे शावेज़ के सफ़ेद चमकदार चेहरे और उसकी कीमती शेरवानी के गिरेबान पर जा गिरे। एक लम्हे के लिए पूरे मजमा पर सख्ता तारी हो गया। शावेज़ का आधा चेहरा नीला हो चुका था और वो पथराई हुई आवाज़ आंखों से हया को देख रहा था, जबकि हया के हाथ में पेन वैसे ही हवा में मुअल्लक था।
फिर अचानक मानी और शिजा की तरफ से दबी दबी हंसी की आवाज़ें और देखते ही देखते हाल में मौजूद तमाम मेहमान और यहाँ तक कि संजीदा जहांगीर साहब भी अपनी मुस्कुराहट छुपाने में नाकाम रहे। शाह उसे से तमतमाता रहा, उसका दिल कर रहा था कि वो चीखे, मगर सामने खड़े कैमरामैन और मेहमानों की वजह से उसे ज़बरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजानी पड़ी। हया ने जल्दी से टिश्यू उठाकर उसका चेहरा साफ करने की कोशिश की और मासूमियत से बोली कि सॉरी शावेज़ भाई, मेरा मतलब है शावेज़ जी, ये पेन ही ख़राब था, मैंने तो बस मदद करने की कोशिश की थी। शावेज़ ने उसका हाथ झटका और दांत पीसते हुए आहिस्ता से कहा कि घर चलो फिर बताता हूँ कि पेन ख़राब था या तुम्हारा दिमाग। निकाह तो हो गया, मगर शावेज़ की नीली शेरवानी और नीला चेहरा इस तकरीब का सबसे यादगार मंजर बन गया, जिसे शायद वो सारी उम्र ना भुला पाता। रुखसती का सफ़र इंतहाई खामोशी और घुटन में गुजरा था। जहाँ गाड़ी में बैठे शावेज़ का मूड इस कदर ख़राब था कि ड्राइवर भी शीशे से पीछे देखते हुए घबरा रहा था, मगर हया बड़ी बेपरवाही से बाहर के मनाज़र देख रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गाड़ी जब नवाब मंजिल के पोरिश में रुकी और रस्मी कार्रवाइयों के बाद हया को शावेज़ के कमरे तक लाया गया, तो उसे लगा जैसे वो किसी मॉडर्न घर के बजाय किसी सरकारी दफ्तर या अजायब घर में आ गई है, जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर साकित व जामद थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने नजर आने वाला मंजर हया के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि पूरा कमरा ग्रे और स्याह रंगों में डूबा हुआ था और दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी तजरीदी आर्ट का नमूना थी, जैसे बालादार थी। हया ने पेशानी पर बल डालते हुए चारों तरफ देखा और अपने भारी लहंगे को संभालते हुए खुदलामी के अंदाज में कहा कि या अल्लाह, ये मैं किस कब्रिस्तान में आ गई हूँ, जहाँ ज़िंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये शावेज़ क्या रंगों से एलर्जी का शिकार है। या इसने कसम खा रखी है कि वो अपनी ज़िंदगी को ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह ही गुजारेगा। शावेज़ अभी कमरे में नहीं आया था, इसलिए हया ने गुस्से और वहशत के आलम में अपना भारी भरकम ज्वेलरी सेट उतारा और ड्रेसिंग टेबल पर रखने की बजाय सामने पड़ी मेज़ पर दे मारा, जहाँ शावेज़ की अहम तरीन फ़ाइलें बड़ी तरतीब से रखी हुई थी। फ़ाइलों का बिखरना था कि कमरे की रही सही तरतीबी दरहम बरहम हो गई, मगर हया का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अपना सूटकेस खोला और उसमें से अपनी पसंदीदा शौक गुलाबी और पीले रंग की बेडशीट्स निकाली, जिन पर बड़े बड़े फूल बने हुए थे, और आनन फानन बेड की शीट खींचकर ज़मीन पर फेंकी और अपनी रंग बिरंगी चादर बिछा दी और साथ ही सोफ़ों पर पड़े संजीदा कुशन्स की अपने लाए हुए सितारों वाले कुशन सजा दिए। अभी वो कमरे का हुलिया बिगाड़ कर फारगी हुई थी कि हाथ के बाथरूम का दरवाज़ा खुला और शायद नीली स्याही के निशान मिटाने की नाकाम कोशिश के बाद बाहर निकला। उसके कदम दहलीज जम गए और उसकी आंखों में वही वहशत उमड़ आई जो कुछ देर पहले हया की आंखों में थी, क्योंकि उसका नफीस और सादा कमरा अब लड़ार की किसी रंगीन दुकान का मंजर पेश कर रहा था। शावेज़ ने सर थाम लिया और दांत पीसते हुए कहा कि हया, ये क्या मजाक है? तुमने मेरे कमरे कस क्यों बना दिया है और ये मेरी फाइलें ज़मीन पर क्यों रुल रही हैं? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इनमें कितने अहम कागजात हैं? हया ने बड़ी लापरवाही से बेड पर बैठते हुए कि देखिए मिस्टर शावेज़, अब ये कमरा सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है और मैं इस वीराने में दम घुट कर नहीं मर सकती। मुझे शौक रंग और पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है ताकि जहाँ इंसानों इंसानों वाली फीलिंग आए, वरना तो मुझे लग रहा था कि भी दीवार से निकल आएंगे। शावेज़ ने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर अपनी टाई की नाट ढीले हुए सोफे पर ढह गया और कहा कि तुमसे बहस करना भैंस के आगे बीन बजाने के मतलब। बस दुआ करो कि मेरा ज़बत जवाब ना दे जाए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे इन रंग बिरंगे कपड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हया ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ रुख कर लिया और दिल ही दिल में खुश हुई कि कम अज़ कम इस खड़ूस के चेहरे पर कुछ तो तासुरात आए। रात मज़की और कमरे की जंग के बाद अगली सुबह का सूरज तलू हुआ तो हवेली में एक अलग ही शावेज़ का मुंतज़िर था। रवायत के मुताबिक नई नवेली दुल्हन को नाश्ता बनाना था और सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर बड़ी बेसब्री से थे कि हया क्या शाहकार पेश करेगी। शावेज़ अपनी कुर्सी पर बैठा बार बार घड़ी देख रहा था और साथ ही साथ दादाजी की मौजूदगी की वजह से चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद किचन से निकली तो उसका हुलिया देखने लायक था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जैसे वो किसी जंग से लौटी हो। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे जिसे उसने लाकर मेज़ पर धड़ से रखा। शावेज़ ने उम्मीद भरी नज़रों से ट्रे में देखा तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि प्लेट में रखी इस कदर जल चुकी थी कि वो कोयला लग रही थी और अंडे कच्चे पके थे जिसकी जर्दी बह के किनारों तक आ रही थी। दादाजी ने शफ़क़त से हया के सर पर हाथ रखा और कहा कि माशाल्लाह, हमारी बहू तो सुगड़ है, अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लाई है। जीते रहो बेटी। हयाते हुए वो काली स्याह ब्रेड शावेज़ की प्लेट में रखी और बड़ी मासूमियत से कहा कि दादाजी, आपको आजकल ये स्मोकी फ्लेवर यानी धुएं वाला जायका बहुत ट्रेंड में है। ये सेहत के लिए अच्छा होता है और पेट भी साफ रहता है, इसीलिए मैंने शावेज़ के लिए ख़ास तौर पर यह तैयार किया है। शावेज़ ने अंडा और ब्रेड देखकर करायत मुँह बनाया और हया के कान के पास झुककर गरार लहजे में कहा कि ये क्या जहर है? क्या तुम मेरा कत्ल चाहती हो? ये जली हुई राख में कैसे अलग से उतारूंगा? हया ने मेज़ के नीचे से अपने पैर
उसे ठुड्डा मारा और दांतों में दबी मुस्कुराहट के साथ से कहा, चुपचाप खा लें वरना मैं दादाजी से कहूँगी कि आप मेरी पहली की तौहीन कर रहे हैं और फिर उनका ब्लड प्रेशर जाएगा तो जिम्मेदार आप होंगे। शावेज ने दादाजी की तरफ देखा जो उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे कि नवाला लेगा। तो शावेज ने दिल पर पत्थर रखकर वो कड़वा नवाला मुंह में डाला और बामुश्किल पानी के घूंट के साथ उसे निकला। दूसरी तरफ हया अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठी सलामी के लिफाफे खोल रही थी और नोट गिनते हुए उसके चेहरे पर जो सुकून था वो शायद मजीद जहर लग रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद जब शाकाहारा रात को घर लौटा और फ्रेश होकर अपने कमरे में सोने के लिए लेटा तो वहाँ एक नया से जंग तैयार था। शाहवेज को आदत थी कि वो एसी का दर्जा हरारत एक कम यानी 16 डिग्री था और उसे तब तक नींद नहीं आती तक कमरा बर्फ़ खाना ना बन जाए। वो रिमोट से टेम्परेचर सेट करके कंफर्टर ओढ़ अभी लेटा ही था कि अचानक एसी की बीप बजी और ठंडी हवा बंद हो गई। उसने देखा तो हया हाथ में रिमोट पकड़े खड़ी थी। उसने एसी बंद कर दिया था। शाहवेज ने उठकर गुस्से से कहा, हया ये क्या हरकत है, एसी क्यों बंद किया तुमने? मुझे गर्मी लग रही है। हया ने बाजू सीने पर बांधे और ठठरते हुए कहा कि मुझे सर्दी लग रही है और मैं कुल्फी का कोई इरादा नहीं रखती। आपको शौक है बीमार होने का तो बाहर जाकर सो जाएं, कमरे का दर्जा हरारत नॉर्मल रहेगा। शाहवेज ने झपट कर उसके हाथ से रिमोट छीना और दोबारा करते हुए कहा कि ये मेरा कमरा है और यहाँ मेरे असूल चलेंगे। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो जाओ इसे कंबल निकाल लो, मगर ये पर ही रहेगा। हया ने गुस्से से पैर पटका और दोबारा स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी ताकि प्लग निकाल दे, मगर शाहवेज ने उसे बाजू से पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब किया। हया शर्म से लाल होती पीछे को हटी। उसने गुस्से से खोली और वहाँ सबसे ऊपर रखी एक वजनी रज़ाई निकाली और रज़ाई को घसीटने पर ले गई और ख़ुद को उसमें पूरी तरह छुपा लिया और मुंह बाहर निकाल कर उड़ाई कि आप इंसान नहीं बल्कि कुतुब शुमाली के कोई रीछ है जिसे सिर्फ बर्फ़ में सुकून मिलता है। शाहवेज ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और बंद कर ली, मगर उसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई थी कि चलो मैं फतह तो उसकी हुई। अगली सुबह हया को यूनिवर्सिटी जाना था, मगर ऐन वक्त पर पता चला कि उसकी गाड़ी छुट्टी और घर का दूसरा ड्राइवर भी छुट्टी पर है। आलमगीर साहब ने हुक्म सादर शाहवेज जाते हुए हया को ड्रॉप कर देगा। शाहवेज ने बहुत बहाने बनाए, मगर उसे मजबूरी में हया को साथ बिठाना ही पड़ा। रास्ते में शाहवेज खामोशी कर रहा था, मगर हया को खामोशी कहाँ रास आती थी। उसने गाड़ी कर दिया और अपनी सीट पर थोड़ा ऊपर होकर बैठ। जैसे ही गाड़ी यूनिवर्सिटी में उसने अपने जानने वाले दोस्तों को देखकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। शाहवेज ने शीशे में उसे देखा और जाकर पूछा कि हया ये तुम क्या तमाशा कर रही हो, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? हाथ हिला रही हो। हया ने बालों को से झटका और कहा, आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में मेरी कितनी फैन है। लोग मेरी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। के आसपास की गाड़ियों वाले लड़के मुड़ कर देख रहे हैं और हद उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस। हया को डांटा कि तुम कोई सेलिब्रिटी हो गया, मगर हया ने उल्टा उस पर तंज का तीर चलाया और कहा कि ओह मुझे लगता है मिस्टर आप मेरी मकबूलियत से जेलस हो रहे हैं, क्योंकि आपको कोई मुड़कर देखता भी नहीं है सिवाय इन गंकल्स के जो आपके ऑफिस में आते हैं। शाहवेज ने बेबसी से सर हिलाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्द अज मुसीबत को डिपार्टमेंट उतार सके। हया मुस्कुराती रही और शाहवेज डूबता रहा कि इसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जीदा होने का नाम ही नहीं। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी और घर की 4 दिवस से काटने को दौड़ रही थी। चनाचे जब दोपहर को जान ने जिक्र किया ड्राइवर छुट्टी पर है और शाहवेज का लंच भिजवाना है, हया ने फ़ौरन ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। गाड़ी की चाबियां घुमाती हुई ऑफिस की तरफ खड़ी हुई। वो जब ऑफिस पहुंची तो वहाँ का खामोश और संजीदा माहौल कुछ खास पसंद नहीं आया और उसने आलिया पर बैठी लड़की कर दी और अपनी आदत के मुताबिक 2 मिनट में उसे अपनी सहेली बना लिया। हया के कह के और बुलंद आवाज़ सुनकर आसपास के कैबिन से भी स्टाफ मेंबर्स बुलाए। हया ने टिफ़िन मेज़ पर रखा, जोशो खरोश से एक लतीफ़ा सुनाना शुरू किया ही था। अचानक सामने वाले शीशे के कैबिन करवा और शाहवेज जो एक अहम कलात फ़ोन पर मसरूफ़ था बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात इतने वाजे थे कि वहाँ हंसते हुए चेहरों पर एकदम सन आ गया और सब अपनी अपनी जगहों पर है। शाहवेज ने एक नज़र हया पर डाल, अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने सबके सामने इंतहाई सख्त लहजे में कि हया ये मेरा कोई सर्कस नहीं है और ना ही ये यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया है। तुम जब चाहो आकाशा लगा लो, यहाँ लोग कहते हैं तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं। हया के होंठों से मुस्कुराहट ऐसे हुई जैसे कभी नहीं और उसे लगा किसी ने भरे मजमे में उसके मुंह पर तमार दिया। शाहवेज का गुस्सा नहीं हुआ था। उसने मजीद कहा कि अगर तुम्हें फ़ायदे का इतना ही शौक है तो रहो, मगर मैं आपका वक्त बर्बाद मत करो। हया की आंखों में फ़ौरन मोटे मोटे आने लगे और उसे अपलील शिद्दत से महसूस हुई।
क्योंकि सब लोग ही देख रहे थे। उसने कांपते हाथों से टिफिन छोड़ा और कोई भी सफाई पे बगैर सर झुकाकर तेज कदमों से यहाँ से निकलती चली गई, जबकि शावेज ने गुस्से से अपने माथे पर हाथ और वापन में चला गया। अंदाजा नहीं था कि उसके अल्फाज हया के दिल पर कितना गहरा लगा गए हैं। शाम को जब शावेज घर लौटा तो उसे मामूल के बाद एक अजीब और जानलेवा खामोशी का करना पड़ा। हया जो हमेशा उसके घर में दाखिल रही, टीवी वॉल्यूम तेज कर दी या कोई ना कोई शरारत कर दी, आज कहीं नहीं आ रही थी। वो फ्रेश होकर कमरे में हया सोफे पर बैठी एक किताब में गुम, और उसने शाह की तरफ पलट कर देखना भी गवारा नहीं। शावेज को अपनी ज्यादती का एहसास तो दोपहर को ही हो था, मगर अब हया की जीत की उसे अंदर से ही थी और उसे समझ नहीं था कि वो आवाज कैसे करे। उसने गला खनका, तवज्जो मगर हया ने जाहिर किया जैसे कमरे में कोई मौजूद ही। शावेज ने करीब जर्मी से कहा कि खाना लग गया है, चलो सार कर रहे हैं। सब पाट लहजे में जवाब दिया कि नहीं है, आप खा लें, और किताब में मुंह छुपा लिया। शावेज ने गहरी सांस ली, करीब बैठते हुए कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने आप सबके सामने तुम्हें डांट कर गलत की, मगर तुम भी तो समझो कि वो की जगह है, डिसिप्लिन का ख्याल रखा है। चलो अब मुंह ठीक करो और ये नाराज करो। हया ने किताब पर पटखी और उठकर जाने लगी तो शावेज हाथ पकड़ कर रो और कहा कि अच्छा सॉरी, मान भी जाओ। हया ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, जो आपकी सॉरी नहीं चाहिए, आपने मिस्ती की है। शावेज बात नहीं बन रही, अचानक बेड से एक छोटा कुशन उठाया और हया के सर दे मारा। मैंने चुप कर उसे देखा तो शावेज मुस्कुरा रहा था। हया के अंदर छुपी शरारत फौरन जाग उठी और उसने सोचे समझे सोफे का कुशन उठाकर पूरी कुव्वत से शावेज मुंह पर मारा। शावेज हंस पड़ा और उसने दूसरा तकिया उठाकर भी हमला किया और फिर देखते वो संजीदा नफी कमरा मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। हया अपनी सारी नाराजगी भूलकर शावेज पर तकिए बरसी थी और शावेज कह के लगे हुए अपना बचाव कर रहा। इसी छीना झपटी में हया का फिसला और गिरने लगी तो शावेज ने थाम लिया। दोनों बेड पर गिर गए, जहाँ वो दोनों हाँपते हुए एक दूसरे को देखकर बेख्तियार हंसे। ये उनकी शुदा जिंदगी का पहला लम्हा था जो उनके दरमियान मौजूद अजनबियत की दीवार गिरी थी और वो दोनों एक साथ हंसे थे। अभी उनके ताल्लुकात में बेहतरी की ये नन्ही सी शुरुआत हुई थी कि किस्मत ने एक नया दिया और अगले ही दिन अमेर से शावेज की पुरानी दोस्त और कोलीग नताशा की आमद हो गई। नताशा शावेज की तरह इंतहाई सुलझी हुई, मॉडर्न और कारोबारी जहानतली लड़की थी। शावेज के साथ एक नए पर काम करने आई थी। शाम को जब वो घर शावेज के साथ ड्राइंग बैठी, बड़ी रवानी से बिजनेस के पेचीदा पर बात कर रही थी, हया जो चाय की ट्रे दाखिल हुई, गुफ्तगू का एक लफ्ज़ पल्ले नहीं पड़ रहा था। हया ने ट्रे मेज पर रखी, शावेज ने उसे देखे बगैर बस हाथ के इशारे रखने का कहा और नता की बात सुनकर जोर से हंसा। नताशा ने हया को सर से देखा, मसनूई मुस्कुराहट के साथ हेलो कहा और फिर दोबारा शावेज की तरफ मुतवज्जा हो गई। हया वहाँ खड़ी खुद इस कदर गैर अहम और कमतर महसूस करने लगी जितना शायद उसने जिंदगी में नहीं किया था। उसे लगा शावेज उसे नताशा ही दुनिया के वासी हैं जहाँ अकल शऊर की बातें होती हैं, जबकि वो महज अनपढ़ और गंवार लड़की जो सिर्फ बना सकती है। हया के दिली बाहर रश्क और जलन का एक अजीब सा जज्बा बेदार हुआ जो उसे अंदर ही अंदर सुलगने लगा। वो चुपचाप वापस आ गई, मगर अभी भी ड्राइंग रूम में अटका हुआ जहाँ से शावेज के कहकों की आवाज़ें आ रही थी। रात के सूरत हाल मजीद बिगड़ी जब शावेज ने नताशा को खाने पर लिया और टेबल पर तीनों मौजूद थे, मगर बातचीत शावेज और नताशा के दरमियान हो रही थी। हया को नज़रअंदाज किया जा रहा था जिससे वो अंदर कुड़ रही थी। शावेज ने अपनी साफ की और हया की तरफ आते हुए कहा कि हया ज़रा किचन सोडा और सालन तो ले आओ, आज भूख बहुत ही है और खाना भी अच्छा है। हया के जहन में एक शैतानी ख्याल और उसने बड़ी खबरदारी से शावेज की प्लेट आई और किचन की तरफ चल जहाँ काउंटर पर लाशों का डब्बा उसका मुंतजिर। हया ने जल्दी से इधर उधर देख इंतकाम की आग में जलते हुए उस सालन डिश में निकालने के बाद उसमें मुट्ठी भरकर लाल मिला दी और उसे मिक्स कर दिया ताकि ज़ाहिरी पता न चल सके। कराती हुई डाइनिंग टेबल पर वापस आई और बड़े प्यार और अपनायत आग उगलता हुआ सालन शावेज की प्लेट में अंडे लिया और बोली कि शावेज जी पेट भर गए। शावेज जो नताशा की किसी बात पर हंस रहा था, उसने हया की आंखों छुपी शरारत को देखा, एक बड़ा सला तोड़ा और सारे शोरबे में डब्बों में रख लिया। नवाला हलक से उतरा था कि शावेज को लगा जैसे उसके मुंह में किसी ने हुए अंगारे रख दी हूँ और उसका चेहरा एकदम सुर्ख गया और आंखों बहने लगा। वो बुरी तरह खांस पानी के जग की तरफ लप, जबकि हया बड़े से अपनी जगह पर बैठ गई और मासूम बनकर नशा से पूछने लगी कि अरे नताशा, आप कहीं आप तो नहीं लग रही।
کہ شاویز تو دیسی مصالحے بہت پسند ہیں۔ شاویز کے مرچوں کا طوفان برپا تھا اور اس کا چہرہ انار کی طرح تھا۔ اس کی نظریں سیدھی حق کے چہرے پر جمی تھی جہاں ایک فاتحانہ رقص کر رہی تھی اور وہ بڑے اطمینان سے باتیں کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ شاویز نے تیسرا گلاس بھی ایک ہی سانس میں خالی کیا اور اپنی جلتی ہوئی زبان کو تھوڑا سکون ملتے ہی اسے ایک دم جھڑکا اور وہ سب سمجھ گیا کہ یہ چائے والی مرچیں سالن میں نہیں تھیں، یہ وہ مرچیں تھیں جو حیا کے دل میں آشا کی آمد سے لگی تھیں۔ اس خیال نہ تھا کہ شاویز کے لبوں پر باوجود تکلیف کے ایک مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لاپتہ لڑکی اسے جیلس ہو رہی ہے اور اس جلن کا اپنا ایک الگ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کھیل مزید آگے بڑھائے اور حیا کو تپائے گا تاکہ دل کا حال پوری طرح سامنے آ جائے۔ کھانے کے فوراً بعد شاویز نے کر اپنا فون نکالا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ آشا کو دوبارہ کال لا دی۔ حالانکہ وہ ابھی گھر سے مگر شاویز کا حیا کو سنانا۔ حیا جو کچن سمیٹ رہی تھی اس کے شاویز کے پر لگے ہوئے تھے جو بڑے لاڈ اور پیار بھرے لہجے میں فون پر کہہ رہا کہ ہاں نتاشا تم ٹھیک تھی، آج کے تمہارے ساتھ گزار بہت اچھا لگا اور تم واقعی بہت ذہین ہو، مجھے تمہارے آئیڈیاز کی ضرورت ہے۔ حیا کے ہاتھ پلیٹ پھسلتے پھسلتے بچی اور اس کا پارا ان کو چھونے لگا۔ غصے میں پاؤں پٹک ہوئی لاؤنج میں آئی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر چینل اور ایک ایسا چینل آیا جہاں اونچی آواز میں مار والا ایکشن سین رہا تھا اور اس نے والیوم کو آخری حد بڑھا دیا۔ شاویز نے بات جاری رکھنے کی کوشش کی مگر شور زیادہ تھا کہ اسے اپنی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے فون کال سے ہٹایا اور حیا کو گھورتے ہوئے کہا حیا شک تمیزی ہے، آواز کم کرو، ضروری بات کر رہا ہوں۔ حیا نے بڑی کندھے اچکائے اور آواز میں کہا کہ کیا کروں شاویز، یہ میرا پسندیدہ اور مجھے آواز میں سمجھ نہیں، اب باہر آ کر بات کر لیں، ویسے بھی آپ کی بات ختم کہاں ہوتی۔ شاویز گراہٹ چھپاتے ہوئے سایا اور فون لان میں چلا گیا جبکہ حیا صوفے پر کشن کو مکے مارنے لگی اور بڑبڑائی کہ ذہنی اپنے گھر میں یہاں تو بس میں اور صرف میں۔ اگلی دن شام کو نتاشا نے کامیابی کی خوشی میں ایک گرینڈ کا اہتمام کیا تھا جہاں شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور علماء مدعو تھیں۔ اس نے حیا سے کہا کہ باہر ہو جائے کیونکہ اسے جانا ہے۔ حیا نے الماری سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پہنے کیونکہ وہ نتاشا کے مقابلہ میں نظر نہیں آنا چاہتی۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک انتہائی خوبصورت گہرے سرخ رنگ ساڑی نکالی جو اس نے اپنی امی کے جیسے چرائی تھی، مگر مسئلہ کہ حیا کو ساڑی بالکل نہیں آتی تھی۔ اس نے کئی کوشش کی مگر ہر بار پلیٹس خراب ہو جاتی یا پلو زمین پر گر جاتا۔ وہ آئینے کی ساڑی کے پلو کے ساتھ کشتی کر رہے کہ دروازہ کھلا اور شاویز سوٹ میں اندر داخل ہوا اور حیا کو لجتا دیکھا، روتے ہوئے منہ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا ساڑی مجھ سے نہیں سا رہی، نہیں جانا، آپ اکیلے چلے جائیں، ویسے بھی آپ کی نیت تو وہیں ہوگی۔ شاویز نے مسے ہوئے اس کے قریب قدم بڑھایا اور کہا کہ لاؤ مدد کر دیتا ہوں۔ حیا حیرتی رہی۔ شاویز اس کے انتہائی کر گھٹنوں پر جھکا اور ساڑی کی پلیٹس کو دینے لگا۔ کمرے میں ایک دم خم آ گئی اور حیا کو اپنا سے رکتی ہوئی محسوس جب اس نے کھڑے ہو کر اس کے پلو سیٹ کیا اور پن لگانے جھکا تو ان کے چہرے ایک دوسرے سے قدر قریب تھے کہ شاویز کی سرماش جو لڑائی جھگڑے سے پاک اور خالص رومانوی تھا۔ اس سے شاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو حیا، بالکل کسی شہزادی کی طرح، اور پاس آ کر اس کے گال پر پیار سے بوسا دیا۔ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی کیونکہ آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ نکاح کا بندھن کتنا مضبوط اور خوبصورت ہوتا ہے اور شاید وہ شاویز کو پسند کرنے لگی ہے۔ پارٹی میں پہنچتے حیا کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا کیونکہ نتاشا ایک انتہائی ماڈرن گاؤن میں ملبوس سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور شاویز کے آتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ نتاشا نے شاویز کا بازو تھام لیا اور اسے مہمانوں سے ملوانے لگی جبکہ حیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میوزک تیز ہوا اور نتاشا نے مسکراتے ہوئے شاویز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ کمن شاویز ایک ڈانس تو بنتا ہے پرانے وقتوں کی یاد میں۔ شاویز ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ حیا بجلی کی تیزی سے بیچ میں کود پڑی اور اس نے فوراً شاویز کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور نتاشا سے بولی کہ ارے نہیں نہیں نتاشا، یہ ڈانس نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں۔ نتاشا نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ شاویز تو بہت اچھا ڈانسر ہے۔ حیا نے فوراً جھوٹ کھڑا اور کہا کہ اصل میں کل رات یہ باتھ روم میں بری طرح پھسل گئے تھے اور ان کے ٹخنے میں شدید موچ آئی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ پاؤں پر زیادہ وزن نہیں ڈالنا ورنہ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ شاویز نے حیرت سے حیا کو دیکھا کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھا
मगर हया ने उसे आंखों से इशारा किया कि चुप रहो और फिर ज़बरदस्ती शावेज़ को कंधे से दबाकर पास पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। निताशा ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ तुम जल्द ठीक हो जाओगे। हया ने मौके गनीमत जाना और निताशा के करीब होते हुए दिखावा किया कि वो उसके गाउन की तारीफ कर रही है और फिर बड़ी होशियारी से अपनी नोकीली पेंसिल हील नताशा के नाजुक पाँव पर रख दी और पूरा वज़न डाल दिया। निताशा के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से तड़प उठी। हया ने फ़ौरन पाँव हटाया और मुंह पर हाथ रखकर बोली कि ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी निताशा, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारा पाँव नीचे है। ये कालीन इतना मोटा है ना कि एहसास ही नहीं हुआ। निताशा दर्द से कराती हुई लंगड़ा कर वहाँ से हट गई, जबकि शावेज़ अपनी हंसी ज़ब्त करने के लिए मुंह पर हाथ रख के बैठा था, क्योंकि वह जानता था कि ये कोई गलती नहीं बल्कि हया का इंतकाम है। थोड़ी देर बाद निताशा जब अपना मेकअप ठीक करके दोबारा शावेज़ के पास आई ताकि उसके साथ बैठ सके, तो हया वहीं करीब ही खड़ी एक वेटर से कोल्ड ड्रिंक का गिलास ले रही थी। जैसे ही नताशा शावेज़ के करीब पहुंची, हया वहां से गुजरी और जानबूझकर कालीन के किनारे से उलझकर लड़खड़ाई। उसके लड़खड़ाते ही उसके हाथ में मौजूद ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक का भरा हुआ गिलास सीधा नताशा के कीमती सफ़ेद गाउन पर जा गिरा। नताशा बुरी तरह गीली हो गई। पास बैठे लोग नताशा की तरफ देखने लगे। हया ने फ़ौरन अपनी पेशानी पर हाथ मारा और घबराए हुए लहजे में कहा कि अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो गिरने वाली थी। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो सारा ड्रिंक तुम पर गिर गया। सॉरी। नताशा गुस्से और शर्मिंदगी से रुआंसी हो गई और उसने शावेज़ की तरफ देखा, मगर शावेज़ ने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि उसकी हंसी अब काबू से बाहर हो रही थी और उसके कंधे हिल रहे थे। वो समझ चुका था कि उसकी बीवी एक चलती फिरती आफत है, जिससे टक्कर लेना नताशा के बस की बात नहीं है। हया ने टिश्यू पेपर का डब्बा उठाया और नताशा को साफ करने की कोशिश करने लगी, जिससे उसका हुलिया मजीद बिगड़ गया और नताशा तंग आकर वहाँ से निकल खड़ी हुई। शावेज़ ने हया की तरफ देखा, जो बड़े सुकून से खाली गिलास ट्रे में रख रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कह रही थी कि जो मेरा है उस पर कोई नज़र नहीं डाल सकता। पार्टी से वापसी पर शावेज़ ड्राइविंग सीट पर बैठा बार बार तिरछी नज़रों से हया को देख रहा था। वो खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबी सड़क को घूर रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। शावेज़ ने आखिरकार खामोशी तोड़ी और स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों से तबला बजाते हुए शरारत से पूछा कि वैसे मानना पड़ेगा मिसेस शावेज़, आपका निशाना कितना पक्का है। पहले निताशा का पाँव, फिर उसका कीमती गाउन। मुझे तो लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। हया ने फ़ौरन पलट कर उसे देखा और अपनी हंसी छुपाते हुए संजीदा होने की अदाकारी की और कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने जानबूझकर किया है, मैं तो बस गिरने वाली थी, वो तो शुक्र करे मैं बच गई, वरना मुझे कितनी चोट लगती। शावेज़ ने ज़ोर से कहका लगाया और कहा, हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मगर सच सच बताओ, क्या तुम्हें नताशा को मेरे करीब देखकर जलन हो रही थी? क्योंकि तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी ये हरकतें साफ बता रही हैं तुम जेलस हो रही थी। हया का दिल एकदम ज़ोर से धड़का और उसके गालों पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई। उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि मुझे भला क्यों जलन होगी? आप जो मर्ज़ी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई टॉम क्रूज़ थोड़ी है। लेकिन उसका झंझलाहट भरा लहजा और नज़रें चुराना उसके दिल का हाल साफ बयान कर रहा था कि वो अब शावेज़ के लिए जज्बात रखने लगी है और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। शावेज़ ने उसकी इस घबराहट को बहुत इंजॉय किया और दिल ही दिल में खुश हुआ कि चलो, इस ज़िद्दी लड़की के दिल में कुछ तो हलचल हुई है। आइसक्रीम खाओगी? शावेज़ ने बड़ी प्यारी ऑफ़र की थी और हया ने मुस्कुराते हुए इस बात में सारी लाया। वो दोनों बड़े ही खुशगवार मूड में आज घर वापस गए थे। अब हया में बहुत तब्दीली आ गई थी, वो इसका ख्याल रखने लगी थी। कुछ दिनों बाद शावेज़ एक इंतहाई अहम बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसकी डेडलाइन सर पर थी और वो पिछले 2 दिनों से अपने कमरे में बंद लैपटॉप पर मुसलसल काम कर रहा था। रात का पिछला पहर था और हया गहरी नींद सो रही थी कि अचानक शावेज़ के ज़ोर से चीखने और मेज़ पर मुक्का मारने की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। हया हड़बड़ाकर उठी और देखा कि शावेज़ बालों में उंगलियाँ फँसाए मायूसी की तस्वीर बना बैठा और उसका लैपटॉप बंद पड़ा है। हया ने डरते डरते पूछा कि क्या हुआ शावेज़, आप ठीक तो हैं? खैरियत है? शावेज़ ने गुस्से और वहशत भरी नज़रों से उसे देखा और लहजे में कहा कि सब ख़त्म हो गया हया, मेरा लैपटॉप अचानक क्रैश कर गया और मेरा सारा डाटा, मेरी प्रेजेंटेशन और क्लाइंट्स की तफसीलात सब उड़ गई हैं। मेरे पास बैकअप भी नहीं था और कल सुबह मुझे ये प्रोजेक्ट जमा करवाना है। अब मेरा कैरियर ख़त्म समझो, क्योंकि ये डील मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला थी। हया ने उसे पानी का गिलास पेश करने की कोशिश की, मगर शावेज़ ने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि अकेला छोड़ दो, तुम इन बातों को नहीं समझ सकती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ यहाँ से। शावेज़ की परेशानी देखकर हया को उस पर बहुत तरस आया और वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मगर उसने हार नहीं मानी थी। वही हया जिसे शावेज़ हमेशा नालायक, गैर जिम्मेदार और सिर्फ शरारतों का पुतला समझता था, इस मुश्किल घड़ी में उसकी ढाल कर सामने आई।
جب شاویز تھکار کر اور مسی کے عالم میں صوفے پر ہی سر ٹیک کر سو گیا تو حیا دبے پاؤں کمرے میں واپس آئی اور اس نے آہستہ سے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یونیورسٹی کا ایک دوست حمزہ IT کا ایکسپرٹ ہے اور وہ ایسے مسائل چٹکیوں میں حل کر لیتا ہے۔ حیا نے اس پر حمزہ کو کال کی اور اسے منت سماجت کر کے جگایا اور اسے ویڈیو کال پر لا۔ حمزہ کی ہدایات کے مطابق حیا نے لیپ ٹاپ کے مختلف کیبلز جوڑی اور کئی گھنٹوں تک جا کر سافٹ ویئر ریکوری کی پیچیدہ عمل کو سر انجام دیا۔ یہ کام بہت مشکل تھا اور حیا کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ وہ شاویز کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھی جب آخرکار اسکرین پر ڈیٹا ریکور ہونے کا میسج آیا۔ حیا کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے فائلز کو محفوظ کیا اور لیپ ٹاپ کو واپس میز پر اسی طرح رکھ دیا جیسے وہ پہلے رکھا ہوا تھا، اور خود ہی زمین پر قالین پر بیٹھے بیٹھے صوفے پر ٹیک لگا کر سو گئی۔ صبح جب شاویز کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے لگا کہ آج اس کی بربادی کا دن۔ اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بٹن دبایا تاکہ دیکھے کہ کیا امید باقی ہے یا اسے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ جیسے ہی روشن ہوئی اور اس کی فائل سامنے آئی تو شاویز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور پھر اس نظر نیچے قالین پر سوئی ہوئی حیا پر پڑی جس کے ہاتھ میں اب بھی ڈیٹا کیبل پکڑی ہوئی تھی۔ شاویز کو ایک لمحے میں ساری بات سمجھ آ گئی۔ یہ معجزہ کس نے کیا ہے؟ اس کے دل میں حیا کے لیے جو عزت اور محبت کا جذبہ بیدار ہوا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنی رات والی بدتمیزی پر شدید ندامت اور اس نے وہیں جھک کر سوئی ہوئی حیا کے ماتھے پر پیار کیا اور سوچا کہ یہ لڑکی واقعی ایک نعمت۔ شاویز کے دل میں حیا کی محبت جڑ پکڑ چکی تھی۔ حیا بھی اپنے جذبات کو سمجھنے لگی تھی کہ محبت کے اس راستے میں ایک غلط فہمی نے سر اٹھایا جس نے سب کچھ تہہ بالا کر کے رکھ دیا۔ دوپہر شاویز آفس میں تھا اور حیا اس کے کپڑے میں ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ اسے شاویز کے کوٹ کی جیب میں ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا محسوس ہوئی۔ حیا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ڈبیا نکلی اور اسے کھولا تو اس میں ہیرے کی ایک انتہائی خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ حیا کا دل خوش اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً سوچا کہ یقیناً شاویز نے یہ انگوٹھی اس کے لیے خریدی ہے تاکہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے اور شاید رات والی مدد کا شکریہ ادا کر سکے۔ حیا نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر شیشے میں دیکھا اور شرما گئی۔ پھر اس نے وہ ڈبیا واپس جیب میں رکھ دی تاکہ شاویز کو سرپراب نہ ہو اور وہ سارا دن خیالی پلاؤ پکاتی رہی اور خوشی سے جھومتی رہی۔ مگر شاویز گھر آئے تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ نتاشا بھی اس کے ساتھ تھی جو کسی فائل پر دستخط کروانے آئی تھی۔ حیا چائے لے روم میں گئی تو اس نے دیکھا کہ شاویز نے اپنی جیب ہی مخملی ڈبیا نکالی اور مسکراتے ہوئے نتاشا کی طرف بڑھا دی۔ حیا کے قدم وہی رہے اور اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ شاویز کہہ رہا تھا کہ نتاشا یہ رہی وہ انگوٹھی جو تم نے منگوائی تھی، امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ اصل میں وہ انگوٹھی نتاشا نے اپنے منگیتر کے لیے منگوائی تھی جو اسے ڈیزائن کے لیے چاہیے تھی۔ حیا نے پوری بات سنے بغیر ہی پھر نتیجہ اخذ کر لیا کہ شاویز نتاشا کو پوز کر رہا ہے اور وہ انگوٹھی کے لیے ہی تھی۔ حیا کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹتے چی اور اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاویز نے اس کے جذبات مذاق اڑایا ہے اور اس کی وہ رات بھر کی محنت اور محبت سب رائے گاں گئی۔ وہ الٹے قدموں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے آئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ کر روئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہے گی جہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے غصے اور دکھ میں اپنا سامان نکالا اور سوٹ کیس میں کپڑے ٹھونسنے لگی۔ اس کا ارادہ پکا تھا کہ وہ آج ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کچھ بھی ہو جائے اس کا دل اس وقت طرح ٹوٹ چکا تھا اور اسے لگ رہا گھر میں اب اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہے جہاں اس کی محبت کا یوں مذاق اڑایا ہو۔ باہر آسمان پر کالی گھٹائیں چکی تھیں اور تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش جاری تھی۔ اس نے اپنا بیگ اور ایک نظر اس کمرے پر ڈالی۔ اس نے پچھلے کچھ ہفتوں میں شاہ کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے یادگار حیا نے سسکیاں زدیں اور چوروں کی طرح دبے پاؤں سے نکلی پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی تاکہ گھر والوں کو خبر نہ ہو اور ٹیکسی لے کر اپنی نانی کے گھر جا سکے۔ دوسری طرف شاویز جو نتاشا کو کر کے بڑے اچھے موڈ میں سیٹتا ہوا کمرے میں داخل وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ الماری کے دروازے کھڑے تھے اور ہینگرز خالی رہے تھے جبکہ ڈریسنگ پر حیا کی پسندیدہ چوڑیاں بھی موجود تھیں۔ شاویز کی انجانا خوف بیدار ہوا۔ اس نے اونچی آواز میں حیا کو پکارا مگر کمرے کی دیواروں کے سوا اسے جواب نہ ملا۔ وہ دیوانہ وار باتھ روم اور کی طرف بھاگا مگر حیا ہی نہیں تھی۔ تبھی اس کی نظر کی سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں اس کے ٹکڑے پر صرف اتنا لکھا تھا کہ آپ اپنی نتاشا کے خوش رہیں، میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ شاویز جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ وہ سمجھ گیا کہ وہ والی بات حیا نے غلط سمجھی ہے اور اب وہ کسی بڑی مصیبت دینے جا رہی ہے۔ اس نے فوراً گاڑی کی چابی اور طوفانی بارش کی کیے بغیر گھر سے باہر نکل کھڑا۔ بارش کا زور ہر گزرتے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو چکا تھا جس کی وجہ سے گاڑی چلانا مشکل تھا مگر شاویز کی کا یہ عالم تھا کہ اسے کچھ دکھ دے رہا تھا سوائے اس خوف حیا اس طوفان میں کہاں
اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور اپنی نظریں سناروں پر جمائے رکھی، جہاں کوئی بھی سواری یا پیدل چلنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راستہ اسٹاپ کے پاس دس سایہ نظر آیا جو سکڑ کر بینچ پر شاویز نے زور سے بریک لگائی اور اسے چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ بارش کی بوندیں سوئیوں کی طرح اس کے چبھ رہی تھی، مگر اس نے وجود کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرح تو وہ حیا ہی تھی جو بھی وجہ سے پوری طرح کانپ رہی تھی۔ گہرا آنسو اور بارش کی کے پانی تھا۔ شاویز کو دیکھتے ہی جانے اسے لینے کی کوشش کی اور چاہا کہ مجھے ہاتھ مت لگائیں اور یہاں سے جائیں، جا کر اپنی انگوٹھی نتاشا بنائیں، مجھے آپ کی جھوٹی حمل کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز نے مت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بازوؤں سے جکڑ لیا اور بارش کے شور پر ہاں کے لیے پوری طاقت سے چاہا کہ حیا ہوش کے ناخن اور میری بات سنو، غلط سمجھ رہی ہو، وہ انگوٹھی میرے لیے نہیں تھی، نہ ہی نتاشا کے لیے تھی، خدا نہ پاگل پن بند کرو۔ حیا نے تڑپ کر کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ سے وہ ڈبیا دے رہے تھے، اتنی خوش ہو رہی تھی، اب مجھے بے مت بنائیں۔ شاویز نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ہاں میں دی تھی، کیونکہ وہ انگوٹھی نتاشا امریکہ سے اپنے منگیتر ڈیزائن کروائی تھی، اسے منگوائی تھی کیونکہ میرا دوست جیولر ہے۔ میرا نتاشا سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے دل میں صرف اور صرف ایک لڑکی ہے جو اس وقت میرے ساری ہے اور جس نے میری عذاب بنا رکھی ہے۔ حیا ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی اور محبت سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ نرم کیا اور اس کے بھیگے ہوئے گال ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ میرا لیپ ٹاپ ریکور والی تم ہو، میری زندگی بھرنے والی تم ہو، اور نتاشا کے لیے تمہیں کبھی نہیں کہا۔ حیا کا غصہ جھاگ بیٹھ گیا اور وہ پھوٹ کر رو پڑی اور شاویز سے لگ گئی جو اسے بارش میں بھی دنیا سے محفوظ پناہ گاہ لگا۔ جب وہ دونوں بارش میں شرابور اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے حویلی پہنچے تو وہاں اور حیرت انگیز منظر ان کا منتظر جس نے اپنی حالت بلا دی۔ حویلی صحن میں جہاں کل تک خاموشی اور نفرت کا راج، آج وہاں مزدور ہجوم تھا اور بڑے بڑے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حیا اور شاویز نے حیرت سے دیکھا کہ دادا نواب الدین وہیل چیئر پر بارش میں بھیگ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جبکہ ان کے دونوں جہانگیر اور عالمگیر دائیں بائیں کھڑے مزدوروں کو ہدایات دے رہے تھے۔ شاویز نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی رات کے اور بارش میں یہ توڑ پھوڑ؟ جی نے شاویز اور حیا کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور انہوں نے کانپتی آواز میں کہا بیٹا یہ توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی بلکہ جوڑنے کا عمل ہو ہے۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کروا، یہ دیوار برلن جو میرے بچوں کے درد کی علامت تھی آج حق کے لیے گرائی جا رہی ہے۔ اسی لمحے مزدوروں نے ایک زوردار کیا اور دیوار کا ایک بڑا حصہ دھڑ سے نیچے گر گیا، جس کے گرتے ہی دونوں صحن ایک ہو گیا۔ شاہ نے خوشی سے تالی بجائی اور شاویز کی طرف دیکھا، مسکرا رہا تھا۔ جہانگیر صاحب نے کر اپنے بھائی عالمگیر کو گلے لگا لیا اور برسوں کی ناراضگی بارش کے پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ گھر میں خوشی کی لہر اور ملازمین مٹھائیاں بانٹنے لگے کہ حیا اور شاویز نے محسوس کیا کہ ان کے دلوں کی دیوار بھی اس دیوار ہی گر چکی ہے۔ دونوں جب کمرے میں آئے ان کے ساتھ صرف محبت تھی اور حیا شاویز محبت میں ڈوب گئی۔ آج کی رات ان دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا لیا تھا ہر طرح سے۔ کے بعد زندگی معمول پر تو آئی مگر اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی لان میں اب کوئی دیوار نہیں تھی اور وہاں پورا ایک ساتھ باربیکیو پارٹی کا۔ حیا اور شاویز چھت کی منڈ پاس کھڑے نیچے کا نظارہ کرتے اور فضا میں کوئلوں کی مہک اور ان کی آوازیں رچی ہوئی تھیں۔ حیا نے جھکتے ہوئے شرارت سے شاویز اور کہا کہ شاویز آپ کو وہ دن جب میں نے یہاں سے آپ پیچھا مارا تھا اور آپ کیسے غصے سے سیدھے ہو کر اوپر آئے تھے، قسم آپ اس وقت بالکل ہٹلر لگ رہے تھے۔ شاویز نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، ہاں مجھے اچھی طرح اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تم ناک میں دم کر رکھا تھا اور سچ تم اب بھی وہی ہو، نمبر کی شرارتی اور ضدی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے بڑا رسک لیا ہے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے، تم سدھرنے والی نہیں ہو۔ حیا نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو ابھی بھی وقت ہے، آپ جا کر عائشہ کو ڈھونڈ لیں، وہ تو بہت تمیز والی ہے، میں تو ایسی ہی رہوں گی آپ کے اب پر سوار۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ لیا اور اس کی آنکھیں ہوئے بڑی گہرائی سے کہا کہ مجھے کوئی تمیز والی چاہیے، مجھے یہی آفت چاہیے کیونکہ اس کے بغیر میری زندگی بالکل اور پھیکی ہے۔ زندگی کا وہ زبردستی کا سائن ہو جسے میں نے اب اپنی مرضی سے اپنا لیا ہے۔ تم میری آفت ہو مگر اب صرف میری آفت۔ چہرے پر حیا کی اڑ گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنا شاویز کے کندھے پر رکھ اور چاند کی روشنی ایک ہو گئے، جو اس بات کا کہ عشق جب تیکھے پن کے ساتھ ملتا ہے تو زندگی کا ذائقہ ہم یہ بدل دیتا ہے۔